Good evening, friends. Ancient or Gaikwad Vadodara was very green and sustainable. In that era, Vadodara has sewage systems, proper roads, drinking water, reserves, all necessary things that you can think of a green habitat. Time lapsed and congestion increased in Old Town. Now Vadodara is horizontally developing, but are we developing it with the precision of late Shri Sayaji Rao Gaikwad? So, friends, today let's talk about our own Sanskar Nagri Vadodara with our own Barodian Green champions. We have with us architect Shreya Dilwari. I welcome her and I welcome her with her own note. Please go green before green goes. So, she is a green development specialist and a green industry consultant. She is a director of Harmony Professional Practice based at Baroda, which is specialized in green industries. She has been able to successfully design and implement low carbon food campus in recent years. She is an architect with urban planner having 18 years of experience in professional consultancy, research and teaching. She has received various national and international accolades for her professional work, including the Green Architect International Award from IIA JK Cement, Green Design Award by Hudco Government of India, only Asian female sponsorship from Government of Netherlands, 4 gold medals to name a few. She has been an advisor to the BMSS. She also touches upon norms and guidelines of smart city planning. She has also conceived and contributed to ideas of smart city Vadodara and million tree mission Baroda. Very shortly, Mr. Sumit Datke will also be joining, and he is our Swachhta Doot, and we will introduce him and welcome him once when he joins us. So, ma'am, uh, you have been living in city of Baroda, and from years, like I'm knowing you from BNI and before that also, like, and you have been living in Baroda city. Do you ever want to change your city and you want like this was there at that time and this is what I want to change now in my city? Yes, absolutely. There are a lot of things that we as Barodians can contribute. Let me first give you a fair idea of where our city stands. We are very fortunate to be living in a city which has such rich legacy, legacy of already going green. As I think the listeners might be knowing that Baroda was the first city to have an underground drainage system more than 100 years back. Baroda was the first city to have so many trees, and it is the only city in India who has a name behind that tree. So this itself shows the legacy that we have inherited. Now we as young citizens carry a very heavy responsibility on our shoulders. We have to carry this legacy forward. At present, Baroda has a very remarkable position in smart city mission started by Government of India. And I think right use of resources is the right use of resources that we have. If we as a citizen of Baroda can conserve the water that we have, we can conserve the energy that we have, we can conserve the biological aura that we have, it automatically indicates that we are green. Continuing this, in the smart city status, Baroda is the first city to have transformed its percent of its annual energy consumption to solar. It is the first city to have the entire traffic management viewed by a command and control center. It is also one of the 5 cities which
which is driven by softwares and CCTV cameras. As you might have seen in Baroda, at every signal you may find that daffodil shaped CCTV. So that is to monitor not only crime but traffic and a lot of infrastructure issues also. So Baroda is the greenest, next to Gandhinagar. It is the greenest city in Gujarat, and before 2 years, it was an objective to make Baroda the greenest city in Gujarat. The mission was targeted to overtake the reality of Gandhinagar. So, also Baroda who are aggressively working towards maintaining the biodiversity of Baroda. Vaho Vishwamitri is one, Nature Walk Group is second, Hokdand is third, and we are fortunate to have many renowned professionals around us who are committed towards making our environment more sustainable. Now, Neetuji, your second question, where can we take our city forward? Say after 10 years or after 20 years, where would I like to see my city? When I was invited, sorry? We will take this in another question. Exactly, my question was what do you want to see? So like we'll take this in another question. And since Sunit ji is there, I would like to welcome him and introduce him and then continue with the questions that we have. So I welcome Dr. Sunit Dapke. He is our Swachhta Doot, and we all three are power team members of BNI Vista chapter. And Sunit ji has done his MSc in Environmental Sciences and PhD in Life Sciences. He received Fulbright Fellowship Award for bioremediation of heavy metal contaminated sites. And he worked with Dr. Rhonda Sherman at North Carolina State University. He has rich experience and happened to work with NERI and projects of USAID and ATIRA. He established his firm Concept Biotech in 2001. He has specific interest and expertise in vermiculture and composting projects. His green mission is to clean up the contaminated legacy sites and work for a better environment for all. Having now completely engrossed with waste management, he encourages farmers to earn from agro waste, ensures more than 5 times return on investments. He introduces the concept of Kachre Se Azadi to promote decentralized waste management. He is the first to work and innovate for decentralized composting system using Tumbler and successfully demonstrated model at Banswara for processing 1 metric ton per day of organic waste. He also commissioned Tumbler composting project for Jaisalmer Fort in Rajasthan. He has done many prestigious projects with IFCO Township. He has done projects with Blacksmith Institute, New York. And he has done a lot of filter plant treatment, vermi-filter plant treatment for 4,000 liter per day capacity also. Concept Biotech undertakes now turnkey projects of setting up the plants of solid waste management, especially industrial sludge, with the aim of treating toxic organic waste into untoxic manure. The firm is first to introduce vermicomposted or biosludge. He is now working with many villages and making them waste-free. And his Swachhta Doots, and you will be happy, his Swachhta Doots are also working in this COVID situation and making the villages clean and green. So he's again one of the green crusaders for us. And we would also like to ask the same question to him. Sunit ji, आप इस सिटी में बहुत टाइम से रह रहे होंगे एंड गेकवा टाइम में जो हमारा ग्रीन हैबिटेट था वो सब प्रेजेंट था ऑलरेडी. जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वडोदरा, क्या हम उसी पेस से जो हमारे गायकवाड़ राजा थे, क्या हम उन्हीं की विजन के पेस के अकॉर्डिंग उसको डेवलप, उसकी जो लीगेसी है हम उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं? और आज बड़ौदा को देख के आपको क्या लगता है कि मैं क्या चेंज इस बड़ौदा में लेकर आ जाऊं? Thank you, Neetu ji. First of all, मेरे को पूछना है, I am audible or not? Yeah, you are absolutely audible.
Yeah, so thanks a lot for inviting me in this very innovative thought process program. And the title of the program is also excellent. Green talks, like and which can inspire and which can exchange of ideas would be superb, and it can create a community of really for those who are really liking green and they would like to see our city green. So first of all, I would like to comment on two things. We are very lucky that we are staying in city Vadodara, where we have a lot of wood, and our city has, like Shreyaji also said that so good NGOs, such good excellent persons, scientists who have already done superb work in like trees and other plantation. So what the change which our Maharaja would have not thought when he would have built this Baroda or any city, and rather I would like to say, is that the waste pattern, like the waste pattern is changing day by day. Lot many people would be comparing that हमारे जमाने में जब ऐसा होता था, like you say about 1950, 1960, 1970, there was no plastic generation. So first of all, I would like to hint that when we get developed, certainly the waste also gets developed. So when I say developed, then the characteristics of the waste also gets changed. So our whole idea is that what level we want to go, what level of segregation we want to go, what level of development we have to do. So how the Vadodara city wants to go. I am very sad on one part. I'm very sad on one part that we always call Indore, and we are taking pride of saying Indore as the number one city. But they have become number one because they could utilize their potential. They could utilize their the funds which was given to them or which they could utilize. Unfortunately, we are not doing that. We are slightly getting backtracked, and we are not focusing on what is our target. So I'm very sorry to say that my history is very poor, so I cannot relate to what our Maharaja had planned for the city in that terms. But yes, I can say that our future is not that bad, and we can really do. We can really do good and try to be the first तो top five cities. तो दैट मीन्स अगर आप एक चेंज चाहेंगे तो वो आप ऐसा चाहेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को हम और थॉरो करें एंड जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देके उसको एक बहुत क्रिएटिव साइड में हम लेके जा सकते हैं। मैंने भी देखी है आपकी जो प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई बेंचेस मैंने आपकी देखी है, और बहुत सारे रैकिंग सिस्टम्स जो स्टोरेज सिस्टम्स है वो मैंने आपके देखे हैं, और जो आपका जुनून है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और आपका जो जर्नी है जो थोड़ा बहुत 3 सालों में मैंने देखा है आपको, तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग है एंड वी फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड टू यू। Yeah, thank you. सो श्रेया मैम, आई कम टू यू। आप वीएमएसएस में भी और म्यूनिसिपैलिटी के साथ भी आप एडवाइजिंग के तौर पे रह चुके। मैं ये कन्वर्सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लूंगी बिकॉज ये जो ऑडियंस है हमारी कॉमन लोग भी है, और मेरा इस ग्रीन टॉक का मिशन भी ये है कि हम नॉर्मल लोगों को भी समझा पाए कि जब हम ग्रीन ग्रीन की बात करते हैं तो हम क्या बोलना चाहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को मैं लेके उनको ये चीज बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो सोचते हैं और करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ग्रीन है, उसको सिर्फ और व्यवस्थित तरीके से अगर हम करें तो हम एक बहुत अच्छा सिटी, एक बहुत अच्छा इंडिया बना सकते हैं। तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करती हैं वीएमएसएस के साथ में और म्यूनिसिपैलिटी के साथ में, तो आप, मैंने आपको रोक दिया बीच में, बट क्या आप वाकई सोचती है कि जो भी प्लानिंग पार्ट होता है, जो भी डेवलपमेंट पार्ट हो रहा है, तो उसमें पर्टिकुलरली ग्रीन बिल्डिंग के जो परसेप्शन है उसको और उसके जो मेजर्स है उनको कंसिडर किया जाता है म्युनिसिपैलिटी लेवल पे? यस, हम अभी पूरी हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे एरा में खड़े हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स को गाइडलाइन दिया है कि क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाएं। उसमें गुजरात इज द फोर रनर। एक बहुत ही फंक्शनल क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट सिट्स एट गांधीनगर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी तो नहीं किया है बट ऑप्शनल किया है
और गुजरात ने उसको अडॉप्ट किया है कि सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो न्यू बनने वाले हैं दे विल बी ग्रीन बिल्डिंग्स, मिनिमम ग्रीन गोल्ड रेटेड. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, गुजरात के बायलॉज में और दूसरे स्टेट्स के बायलॉज में भी है, गुजरात के बायलॉज में बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है, जो लोग ग्रीन बिल्डिंग्स बनाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं उनको बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं. दिस इज अ ग्रेट न्यूज. मतलब ये जो नंबर 2 वाली न्यूज है, दैट मीन्स कि अब तक हमारे जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स बॉटम अप काम कर रहे थे, अब गवर्नमेंट टॉप डाउन काम कर रही है. तो इन दोनों का जब मैच होगा तो एक पूरा ग्रीन मूवमेंट एक साथ स्टार्ट होगा. मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि आज की तारीख में गुजरात में प्लीज बायलॉज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपल्सरी फॉर एनी न्यू डेवलपमेंट विच इज मोर देन 1000 मीटर स्क्वायर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपल्सरी, वेस्ट मैनेजमेंट इज कंपल्सरी, सोलार इज कंपल्सरी. ये 3 तो कंपल्सरी ही हैं. न्यूज नंबर 3, these 3 are compulsory. Going back to news number 2, इसके ओवर एंड अबव आप कोई भी इको फ्रेंडली मेजर्स करते हो तो आपकी सोसाइटी, आपकी कॉलोनी, आपके अपार्टमेंट्स, आपके इंडस्ट्री, आपके स्कूल, जिस भी सेटअप, जिस भी कैंपस में आप हो, उनको एडिशनल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं. फोर्थ मैं कहना चाहूंगी, बहुत एग्रेसिवली टॉप लेवल पे लो कार्बन फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट विचारों में चल रहा है. वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं जिसने अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी सोलर से जनरेट कर दी है, और स्लोली बट वेरी स्टेडीली गुजरात इज ट्राइंग टू मूव एनर्जी, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट का सबसे बड़ा पैरामीटर है सिटी लेवल पे. तो एनर्जी पे पहला फोकस है, दूसरा फोकस वेस्ट पे है, तीसरा बाकी बिल्डिंग्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर्स पे है. मेरा ये क्वेश्चन एक्चुअली सेकंड आने ही वाला था कि जैसे हमें अभी हम लोग सभी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मेंबर्स हैं, IGBC, और IGBC एग्जैक्टली क्या है मैं आगे वाले सेशंस में बताऊंगी, एंड प्रोबेबली हम IGBC से भी किसी को लेके आएंगे यहाँ पे लोगों को एक बहुत नॉर्मल टर्म्स में समझाने के लिए कि IGBC क्या है और उसका रोल क्या है. पर जैसे FAR एक्स्ट्रा दिया जाता है ग्रीन बिल्डिंग के लिए, लोकल टर्म्स, लोकल लेवल पे आपने ऐसा बोला कि सोसाइटीज को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करवाए हैं और क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहाँ पे लोकल लेवल पे मिलते हैं जो इंसेंटिव्स हैं और लोगों को प्रमोट करें, मोटिवेट करें ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने के लिए और ग्रीन प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ, एक सेगमेंट है हाउसिंग अपार्टमेंट्स. वो अगर ग्रीन रेटिंग लेते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज और हाउसिंग अपार्टमेंट्स, उन्होंने अगर ग्रीन गए हैं तो उनको एक प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट बनाती है कॉर्पोरेशन, उसमें डाला जाता है सारे उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, आइदर वाटर रिलेटेड या वेस्ट कलेक्शन रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, तो उसको प्रायोरिटी 1 देके आंसर किया जाता है. प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड तो उसको प्रायोरिटी 1 देकर आंसर किया जाता है. एक और बेनिफिट है, जिस डेवलपर ने वो स्कीम बनाई है उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता है और बैंक में से इंटरेस्ट में रिबेट मिलता है जो लोन अगर वो लेता है. इसके अलावा सिडबी और फिकी के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जो ऐसे डेवलपर्स को बहुत एनकरेज करते हैं कि भाई आप पूरी अर्थ की इकोलॉजी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो कम, वी विल आल्सो सपोर्ट यू एंड वी विल हेल्प यू. तो उनको फंड्स और इन्वेस्टमेंट लाने में बहुत एग्रेसिवली हेल्प मिलती है. देयर आर स्पेशल स्कीम्स कि अगर विमेन एंटरप्रेन्योर है, ग्रीन डेवलपमेंट है, तो सिडबी इज ऑफरिंग देम गुड हेल्प. तो ये एक सेगमेंट हुआ हाउसिंग. इसके अलावा के जो सेगमेंट है, अगर रिसोर्ट है या फैक्ट्री है या स्कूल है, तो उनके जो ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस हैं
पेएबल टू कॉर्पोरेशन, उसमें इनको डिस्काउंट मिलता है इफ दे आर गोइंग ग्रीन, प्रॉपर्टी टैक्स में, व्हिच इज अ ह्यूज सेविंग. Yeah, I was also not knowing about this thing. So it's really great economic benefit that they are having. अभी वेस्ट मैनेजमेंट सुनीत जी CSR एक्टिविटी में ले लिया गया है, तो इसमें प्रोबेबली लाइक वेस्ट मैनेजमेंट अगेन कम्स इन अ ग्रीन प्रैक्टिस. तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम ग्रीन देखें किसी भी बिल्डिंग को या ग्रीन सिटी के बारे में देखें, ग्रीन सिटी के बारे में, और अगर हम अपनी सूर्य नगरी जो बड़ौदा संस्कार नगरी है उसको अगर हम ग्रीन बनाना चाहते हैं, तो उसमें दो लेवल्स होंगे, एक माइक्रो लेवल होगा और एक मैक्रो लेवल होगा. तो माइक्रो लेवल में अगर हम देखेंगे तो एक बिल्डिंग है या एक सोसाइटी है, उसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा. और अगर हम मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो एक सिटी के लेवल पे हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी हमारी सिटी को ग्रीन बनाने के लिए. तो मैं उसमें आप दोनों के व्यूज जानना चाहूंगी कि माइक्रो लेवल पे क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जो किसी भी घर को ग्रीन बनाने में हेल्प करेंगे. बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोग करते हैं, उनको नहीं मालूम है, तो बहुत लेमैन की लैंग्वेज में कि ये पैरामीटर्स हम करेंगे तो हमारा घर एक ग्रीन कहलाएगा, और हम सिटी के लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे फर्स्ट करेंगे तो ये पैरामीटर्स होंगे, और अगर फिर उसको सिटी के लेवल पे हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं आगे, उसमें आप दोनों के व्यूज जानना चाहूंगी. मेरा अगर बोलना चाहूँ तो मैं वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ग्रीन रेटिंग्स के बारे में मेरा ज्ञान श्रेया जी से तो काफ़ी कम है और आपसे भी कम है. बट मैं इतना जानता हूँ कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द पार्ट ऑफ ग्रीन रेटिंग इज दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो लेवल ऑफ अ सिंगल हाउस, लाइक आई एम स्टेइंग इन अ फ्लैट, मैं एक फ्लैट में रह रहा हूँ या एक बंगलो रह रहा हूँ, तो उसमें बंगलो का प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग इट ग्रीन और उसमें जो रेटिंग है उसको मिलना बहुत बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज फ्लैट में वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है. जैसे मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं कि दैट अगर मेरे को आउटसाइड कोटिंग करानी है फॉर लाइक IR रेडिएशंस अंदर आने के लिए, दैट आई कैन नॉट टेक अ परमिशन फ्रॉम द बिल्डिंग ओनर्स और द फ्लैट टू डू दैट. बट इन अ बंगलो आई हैव द होल प्रोबेबिलिटी कि मैं अपनी छत पे वो करवा के वो एक काम कर सकता हूँ, एंड दैट कैन लाइक गेट सम बेनिफिट एट दैट. Yes, one thing is very good, like I can do two things in my flat or a bungalow at a micro level, is the changeover of my electricity use, like the electricity use है उसमें मैं maximum changeover क्या कर सकता हूँ. So that is one thing. And second thing is that use of or participating into waste management habit, like one good habit can change a different scenario. I would like to give one example of macro also, like macro I am always saying that we adopt एक इंडिविजुअल लेवल से हम सोसाइटी लेवल पे जाते हैं, सोसाइटी लेवल से बाद में अपने एक लेन लेवल पे जाओ, लेन लेवल से बाद में आप वार्ड लेवल पे जाओ, एंड द सेम थिंग वी आर डूइंग इन विलेजेस. What we are doing is that at present I don't know, I think Shreyaji can tell much better, is there any green rated village? If Yes. not, then there's a very good opportunity for us to do that. No, we have. Excellent. So I know about Punsari. I know Punsari, which is a smart village, but green rated I'm not knowing about that. So that is one thing. It's smart village is different and green rated village may be different. I don't know, but I think Shreyaji can say it. But in a macro level, yes, we can adopt such villages or wards, and then we can go for the whole city level. So that is my comment for that. श्रेया जी, आप क्या बोलना चाहेंगी? माइक्रो, मैक्रो एंड एक्स्ट्रा मैक्रो सिटी लेवल तक अगर हमको ग्रीन जाना है तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपकी नजर में क्या क्या हमें करना पड़ेगा? देखो, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस इश्यू, क्योंकि मैं वर्ल्ड लेवल पे इसको बोल भी चुकी हूँ बहुत बार कि हम जिस माइक्रो की बात कर रहे हैं ना, दैट इज आवर ओन फैमिली साइज ऑफ 4, 6 और 8. यस, ठीक है. तो ये 4 पर्सन्स अगर थियोरेटिकली समझ ले कि 4 और 6 के बीच का 5 इज द फैमिली साइज, तो वो एक माइक्रो लेवल हुआ. और इन 5 लोगों के अस्तित्व के लिए जितना ऑप्टिमम चाहिए उतना ही हम यूज करें, चाहे वो वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे बर्तन हो, चाहे गैस हो, चाहे
eatables or anything. तो ऑप्टिमम इज द की वर्ड. अगर हम 5 के स्केल पे अपना ऑप्टिमम डिफाइन करें एज पर आवर ओन कन्वीनियंस, एज पर आवर ओन लाइफस्टाइल, और हम उसको ट्राई करें कि वी स्टिक टू इट एंड वी ट्राई टू मेंटेन इट. उस ऑप्टिमम, आज की तारीख में जो ऑप्टिमम है उसको डिफाइन करके वहीं पे रुक जाना है, उसको बढ़ने नहीं देना है. ये एक छोटा एक्सरसाइज है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए. दिस इज माइक्रो. अब मैक्रो इज 20 लाख पॉपुलेशन ऑफ बड़ौदा सिटी. तो 5 से जब 20 लाख पे जाता है तो प्रिंसिपल सेम रहता है लेकिन स्केल बड़ा हो जाता है. और अगर इस 20 लाख को आप 5 के यूनिट्स में जांचना शुरू करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि 5 के लेवल पे जितनी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उतना 20 लाख के लेवल पे इजी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन करना. हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बट मैं ऑडियंस को ये याद दिलाना चाहूंगी कि 20 लाख की पॉपुलेशन पे इन सब टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल होता है डेमोक्रेसी में. यानी वी शुड नॉट वेट कि वो 20 लाख के लेवल पे होगा तब मैं करूंगा या मैं करूंगी. वो एक गलत अप्रोच हो जाएगा. अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड और सेल्फ रिलायंट बनते हैं तो मेरे ख्याल से माइक्रो पे इफेक्ट होगा और एवरी ड्रॉप विल फिल द ओशन. ऑटोमेटिक मैक्रो पे जाए. दैट्स वेरी ट्रू. अगर हर एक जना अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ले तो ऑब्वियसली जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप फिल हो जाती है एंड इट बिकम्स इजी फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो टू मैनेज द थिंग्स. बट सिटी लेवल पे फिर भी मेजर तरीके से अगर हम बोले तो जैसे अभी एक तो प्लानिंग पार्ट आ जाता है. तो प्लानिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट जो कम्यूशन है उसके अंदर जो डिस्टेंसेस हैं वो कम हो, वो इतना स्मार्ट प्लानिंग हो. तो डिजाइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक ग्रीन सिटी बनाने के लिए, एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए. उसके बाद अगेन लाइक हमारा एक आशीष जी के साथ में कन्वर्सेशन हो रहा था. तो अकॉर्डिंग टू हिम जो उन्होंने मुझे हम लोगों को एक टिप दी थी और वो मैं आज शायद रिपीट करना चाहूंगी कि मीटरिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या वाटर हो, मतलब हम कितना यूज कर रहे हैं तो वो जो यूज कर रहे हैं उसको हम एक बार नापे कि कितना हम यूज कर रहे हैं और उसके के बाद हमको पता लगेगा कि ऑप्टिमम कितना हम यूज, कितने कम में यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट पता लगेगा कि कितना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं तो लाइक मे बी लाइक हमारी आईज ओपनिंग होगी. इसके पीछे लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमको छोटे छोटे लेवल पे करनी पड़ेगी. और जो आपने एक बोला कि खुद की रीसाइलेंस बहुत जरूरी है, तो मैं एग्जैक्टली लाइक हम लोगों ने वारंगल स्मार्ट सिटी में जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके साथ काम किया एंड उनकी एक स्पीच में जब वो हमको रिप्रेजेंट मतलब हमारी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे तो एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बोली थी कि ग्रीन को अगर हमको सबको इम्प्लीमेंट करवाना है ना तो वो अंदर से आना बहुत जरूरी है. मतलब यू कैन नॉट पुश एंड यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू इम्प्लीमेंट द ग्रीन या ग्रीन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना. फॉर एग्जांपल जैसे गांधी जी ने खादी का चलन बनाया तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो खादी पहनने के लिए तो वो आपके अंदर से ना आए. अभी जैसे जो हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि लोकल वो हमें वोकल करना है तो वो सब आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो. कहीं से एक छोटी शुरुआत करके आपको अपने अंदर से लाना पड़ता है. तो जब तक अंदर से किसी को ये चीज महसूस नहीं होगी तब तक ये चीज नहीं आ पाएगी. तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो अंदर से आने वाला, जो खुद के अंदर से आने वाला है उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं या आप अभी तक क्या कर रहे हैं? और सुनीत जी आप भी जैसे वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट देखते हैं कि जैसे अभी आपने विलेज के अंदर धुमाल चौकड़ी के अंदर आपने जो वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा इतना बड़े लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लिया है तो वहां पे भी ये करना मतलब अनएजुकेटेड लोग या कम लिटरेट, जो लिटरेट नहीं है उन लोगों से ये सब चीज करवाना और वो भी सस्टेनेबल करवाना. मतलब आप अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो लोग वो कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं. वो चीज करने के लिए आपको क्या लगता है लाइक व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट्स यू हैव टू पुट और वो क्या क्या आपकी एफर्ट्स रही हैं और आपकी क्या डायरेक्शन है और गाइडेंस है आगे कि मासेस में हम ये सारी चीजों को लेके जा सके?
अगर मैं कमेंट करूं कि सी वेस्ट मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी क्रिटिकल बिकॉज नो हमारी Yeah. we have forgot or we have forgot the discipline in which we are trying to live. When you are staying in a house, आप अपने घर में रहते हो तो आप इस कोविड सिचुएशन में भी you are trying to clean up and see that the waste is going out. So when we can stay or keep our house clean, then we have to think about keeping our village or ward or our society clean, and that we are maintaining society houses or your individual houses. But what why we are successful in village level, क्योंकि काफी लोग ये भी समझते हैं कि लाइक विलेज में काम करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज जागृति कम होती है, एजुकेशन लेवल कम होता है. वो ऐसा नहीं है. For in terms of waste management, दोनों जगह challenges are the same because the attitude for the waste at both the places is also same. The reason I'm saying that why our project are successful or we are able to sustain because हम last 5 साल से काम कर रहे हैं और अब तक हम 10 villages में हमारा intervention कर चुके हैं. And Dumad is our 10th project, so it is not only our first project, and we are successful because we are giving incentive. इंसेंटिव इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. श्रेया जी ने बताया कि अगर आप ये करते हो, वो करते हो, आप ये सब ग्रीन बिल्डिंग में आते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, आपको रिबेट मिलता है. सो दैट इज द इंसेंटिव. पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. व्हाट दे आर गिविंग इज दैट if you are going to put this your wastewater treatment plant, solid waste plant, and you are going to manage your own waste, you will get 5% rebate on your house tax. So it's a very good thing which as an incentive the municipal corporation has thought. So there are many such examples. What we are doing in villages that हम क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमको जो सिंगल यूज प्लास्टिक है that is the challenge. आप ये मत समझो वेस्ट मैनेजमेंट देयर आर मेनी थिंग्स, बट आप देखो तो सुबह जो रैक पिकर्स चल के जाते हैं दे आर द बेस्ट क्लीनिंग एजेंट्स. वो जितना भी पेट बॉटल्स बाहर पड़ी होती है उसको उठा के रिसाइकलर को देते हैं. रिसाइकलर्स उसको रिसाइकल करके यान बनाते हैं. यान में से आपका क्लॉथ बनता है, क्लॉथ में से टी शर्ट बनता है. So there are very good multiple examples, and we are lucky that we are staying in India because हम 40% जितना रिसाइकलिंग कर रहे हैं and generating jobs. Now telling a very strange fact at present, अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है now as an individual आप डिसाइड करो कि आपको एनवायरनमेंट चाहिए कि इकोनॉमी चाहिए. अभी जो मैं आपको क्वेश्चन रखने वाला हूँ वो ऐसा है ना कि यू विल बी सरप्राइज टू लिसन द क्वेश्चन एंड आंसर आल्सो. अब तक ये था कि कोविड के पहले एवरीथिंग वाज गोइंग, देयर वाज लॉट ऑफ बिजनेस गोइंग अराउंड एंड दैट बिजनेस वाज जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. ह्यूज अमाउंट ऑफ मतलब हर एक चीज का प्लास्टिक, एंड द इकोनॉमी वाज वेरी हाई बिकॉज द बिजनेस वाज देयर. In this COVID, the problem is that my sweepers or my recycling agents are now jobless because there is no plastic. There is no high value plastic. But because of this COVID, you can see that all the collection is 100%. So villages road, I should come to the village and see that, or मैंने आपको I think बीच में photograph भी भेजे थे. It is super clean. I can beat इंदौर. आज मैं इंदौर को हरा सकता हूँ, उस तरह का हमारे पास वो है because the collection is 100%. But now we have to know, the question is very clear that if we want to save environment, then this COVID shows that if you minimize the use of plastic, if you minimize, जैसे श्रेया जी ने बताया कि अपना जो requirement है अगर हम उस पर control कर सके तो we can win the battle of environment and as well as this. So the incentive model is the best way to go ahead. Give incentives in cities also, and you see that results would be superb, and that will be really benefiting our environment. आपका क्या कहना है श्रेया जी? आई एम टेकिंग फॉरवर्ड what सुनीत जी जहाँ छोड़ा है कि प्लास्टिक तो अभी हमारे टाइम का ना बकासुर है. मतलब अभी जो रामायण महाभारत भस्मासुर जैसा है, एक बड़ा राक्षस है. वो आप कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट की साइट पे जाओगे, जैसे बड़ौदा सिटी के अगर व्यूअर्स हैं तो अगर आप जम्बुआ जाओगे तो वहां पे एक बड़ा माउंटेन बन गया है. मतलब वो वेस्ट का ऐसा माउंटेन है, उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा इस राक्षस को महात कौन करेगा, राम भगवान को ही आना पड़ेगा बाण लेके. सो आई वेरी मच अप्रिशिएट जो सुनीत ने कहा है
कि प्लास्टिक वेस्ट को तो प्रायोरिटी देना ही है, क्योंकि उससे हमारा सॉइल वाटर सब कुछ खराब हो रहा है, और वेस्ट पे भी प्लास्टिक वेस्ट सबसे बड़ा कल्प्रिट है, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। नीतू जी, आपका जो क्वेश्चन था कि मोटिवेट कैसे किया जाए, तो जैसे सुनीत जी ने कहा है, इंसेंटिव तो है ही। इंसेंटिव ऐसी भाषा है, पैसे की बचत ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है। यानी जब एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक बेनिफिट की शादी होगी, तब हम एनवायरनमेंट कंजर्व कर पाएंगे। ये अब एकदम इस्टेब्लिश हो गया है, गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट किया है। सो दैट इज अ वेरी ग्रेट एंड अ वेरी बिग न्यूज, और बहुत मोटिवेट होगा, क्योंकि मोदी जी भी अभी लोकल जाने को कह रहे हैं। दूसरा काम ये करना है कि अब तक हम इको फ्रेंडली होने को हमारी जवाबदारी बता रहे थे। जैसे नीतू जी आप पूछ रहे थे कि अंदर से लोगों को अपनी जवाबदारी का रियलाइजेशन हो या न हो, तब क्या किया जाए, यू नो। जैसे कि मेरे घर में मैं इको फ्रेंडली बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ शायद मेरे अगेंस्ट हो, तब क्या किया जाए? तो इसका सोल्यूशन है मोटिवेशन नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, ग्रीन को फैशनेबल बनाया जाए, ग्रीन को मेन स्ट्रीम माना जाए। ग्रीन होना या इको फ्रेंडली होना सिर्फ एलीट लोगों के लिए नहीं है, जो फार्म हाउस में रहते हैं उनके लिए ही है, हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज द इन थिंग नाउ। आप अपने स्टेटस में एक बार लिख के देखो, आई एम गोइंग ग्रीन दिस वीक, फिर देखो आपको कितने लाइक मिलते हैं। शायद then you will understand my statement. ग्रीन और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बहुत ही पूरे वर्ल्ड में सारे सेगमेंट में, मैं आर्किटेक्ट हूँ, सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री नहीं, कॉस्मेटिक्स में, फूड में, ऑर्गेनिक फूड, हम जो अम्ब्रेलाज लेते हैं, हम जो टी शर्ट्स पहनते हैं, वो सब बहुत फैशनेबल हो रहा है और अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट बन रहा है। यानी अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक इंडिविजुअल या एक फैमिली ऑफ 5 अपना एक रास्ता चुने, उस रास्ते को फॉलो करना स्टार्ट करें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कोई दबाव नहीं है, उस रास्ते को फॉलो करना शुरू करें और उसको फैशन स्टेटमेंट बनाएं। जहां भी जाए ऐसे सर उठा के बताएं कि भाई आई एम अ जीरो वेस्ट हाउस, आई एम अ जीरो इलेक्ट्रिसिटी हाउस, मैं ग्रिड में से बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता हूँ, या मैं म्यूनिसिपैलिटी से बिल्कुल वाटर नहीं लेता हूँ। उसको एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाएं। जब वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बनेगा तो पूरा नजरिया उसको मेन स्ट्रीम सोचना शुरू करें, एंड देन दैट विल स्टार्ट एज अ मूवमेंट। तो मतलब एक तो ये है कि अपनी सोच में ही सब लोगों को ग्रीन लाना पड़ेगा, और मे बी उसके लिए हमें अभी आजकल जो चल रहा है, हम स्कूल्स में भी बच्चों के अंदर वो ग्रीन का चीज डाल रहे हैं, और जो इंसेंटिव है वो अपने आप में एक है। बट मैं ऐसा देख रही हूँ श्रेया जी की कुछ गैप है। जैसे अगर जो आप इंसेंटिव की बात बोलते हैं, या जो आप प्रॉफिट टैक्स बेनिफिट्स और इनसे की बात जो बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जो लोन्स की भी आप बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, एंड एट टाइम्स वो ना बातों बातों की बात लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक दो हम लोग एक पावर टीम में है, तो हमें ना अपना एक ऐसा वर्टिकल ढूंढना चाहिए या कुछ स्टैब्लिश करना चाहिए जो हम लोगों को ना फैसिलिटेट करके दे पाए। मीन्स वी कैन एग्जैक्टली फैसिलिटेट देम कि अगर उनका ये प्रोजेक्ट ऐसा हो रहा है ग्रीन, तो ग्रीन कैसे करना है उसके लिए आप डेफिनेटली दे रही हैं, बट हम अपने उसमें ये भी डालें कि अगर उनको बेनिफिट्स देने हैं तो देन क्या क्या चीजें हैं जो हम उनको दे सकते हैं, एंड वी कैन हैव देम, गाइड देम, हैंड होल्डिंग उनका करें कि ये वाला लोन आपको मिल सकता है, इसमें ऐसा बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा प्रॉफिट। तो दैट सॉर्ट ऑफ एक वर्टिकल ना वी कैन एग्जैक्टली हैव अ सोशल मीडिया, या हमारा प्लानिंग है कि हम इसको जो ग्रीन पावर टीम को एक बहुत स्टैब्लिश वे में करें, तो उसके अंदर एक ये वर्टिकल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को भी ग्रीन से रिलेटेड कुछ भी चीज जाननी हो तो दे कैन कम देयर, एंड like free of cost we can give them guidance, and then like
जिसको जो जो चीज चाहिए, देन एक टेक्निकली साउंड टेक्नोलॉजिस्ट से वो लोग वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेटिंग करवाना है तो आपसे करवा सकते हो, उसको एग्जीक्यूशन करवाना है तो इससे करवा सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट इससे कर सकते हैं। तो ये एक गैप जरूर निकलता है, जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंटर जो होता है, तो दैट नीड्स टू बी देयर टू प्रमोट ग्रीन मोर। एंड जो इनबिल्ट आ रहा है वो डेफिनेटली, पर मुझे ऐसा लगता है श्रेया जी एंड सुनीत जी की जैसे जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छता का जो ये अभियान चालू करा है, स्वच्छ भारत, तो वहां से इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। मीन्स अपने अपने घर की सफाई सब लोग रखते थे, पर जो एक कंट्री को क्लीन रखना है, उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है वो बहुत इम्पैक्ट रखता है। फिर अभी हम जैसे लोकल वोकल बोल रहे हैं, तो अगेन वो वहां से जब निकलता है तो इट गिव्स अ वेरी बिग बूस्ट एंड एवरीबडी एग्जैक्टली इज रनिंग बिहाइंड दैट एंड कॉम्पीट। जैसे हर सिटी के अंदर कंपटीशन हो रहा है कि कौन सा ज्यादा स्वच्छ है, कौन सा स्मार्ट है। तो प्रोबेबली अगर ग्रीन का कंसेप्ट भी अभी तक जो आ रहा है ना ऊपर से, वो टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है, जैसे सोलर टुकड़ों में आ रहा है, रेन हार्वेस्टिंग टुकड़ों में आ रहा है। बट अगर हम ये जो ग्रीन का कंसेप्ट है वो भी अगर हम किसी तरह से ऊपर से अगर ये चीज को स्प्रेड आउट करवाएं, तो प्रोबेबली हमको एक बहुत ही डिफरेंट भारत देखने को मिलेगा कुछ टाइम के बाद। मुझे लगता है कि एक वो भी चीज है कि हम किस तरह से अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाए। मतलब हम लोग का जो आईजीबीसी है वो एग्जैक्टली कोशिश भी कर रहा है कि दे कैन एग्जैक्टली गो एंड शोकेस व्हाट एग्जैक्टली आईजीबीसी इज एंड ग्रीन बिल्डिंग क्या बेनिफिट देती है। हम लोग जैसे स्टूडेंट्स चैप्टर में जाके स्टूडेंट्स को भी, जैसे हम देख रहे हैं कि सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको वो एक ही दिमाग में होता है कि उनको सिविल इंजीनियर बनना है। बट अब उनके पास एक ग्रीन का कितना बड़ा एरिया है उनको पता ही नहीं है कि वो कैसे फैसिलिटी मैनेजर्स बन सकते हैं, कैसे ग्रीन बिल्डिंग की मेंटेनेंस है उसका। बिकॉज ग्रीन बिल्डिंग बनाना अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है, बट उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें शायद और आगे करनी पड़ेगी। मेरा अगला क्वेश्चन है नीतू जी, मैं उसके पहले एक कमेंट देना चाहूंगा। हाँ जी सर। एक लाइटर नोट पे कमेंट देना चाहूंगा, सो दैट यू नो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक थोड़ा अच्छा लगेगा। इट्स अ लाइटर नोट, मतलब आपने बताया कि मोदी जी ने ये बहुत अच्छा अभियान चालू किया, और नो हाँ अभियान चालू करने के बाद पर अगर सामने वाला रिसीविंग एंड में अगर सक्सेसफुल मतलब वो नहीं होगा, मतलब वो तैयार नहीं हाँ होगा, तो वो बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है। नहीं अब एक बहुत डेफिनेटली। सिंपल एग्जांपल बता दूं, आपने पैडमैन पिक्चर देखी? हम्म अब पैडमैन काहे के लिए बनाई थी? क्योंकि वो दे वांटेड टू लाइक नो वुमेन्स हेल्थ हाइजीन, ये वो, हम्म 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 उसके कारण पैड का कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड। एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छा है, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट हम्म इट्स हैपनिंग। And good part is that women health is now going to be sadly secured. हम्म But the problem now comes on the waste management. वेस्ट मैनेजमेंट। पहले होता जो पैड है, जो मेरे 10 आते थे, आज मेरे पास 100 आ रहे हैं, और हाँ 100 के लिए फैसिलिटी नहीं। तो इट्स लाइक एक गुड पार्ट इज लाइक सेम थिंग टॉयलेट्स के लिए भी आप बता दो। अपने टॉयलेट एक प्रेम कथा पिक्चर बनी, बहुत हाँ डेवलपमेंट हुआ, बहुत अवेयरनेस हुआ, पर अभी टॉयलेट यूज करके उसको सच में अच्छा सस्टेनेबल बनाना वो अभी भी ज्ञान नहीं है। सो इट्स लाइक इन अ लाइटर नोट आई से दैट नहीं नहीं दैट्स ट्रू। ये तो साथ साथ में चलने वाला साथ है साथ में चलने कि वाला। हाँ, ऊपर से सिर्फ एक चिंगारी डाली जाती है, अब उसके अंदर से आग कैसे बनाना है वो हम जैसे और आप जैसे लोगों का ही काम है कि वो चिंगारी को पकड़ के उसको एक सही डायरेक्शन देके और लोगों तक सही मैसेज पढ़ के, तो एक्चुअल एग्जीक्यूटर्स जो है वो आप जैसे लोग होते हैं जो उसको ग्राउंड के ऊपर एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं। तो डेफिनेटली आप जैसे लोगों का जो पैशनेट है, उन लोगों का इस मूवमेंट में होना और साथ देना बहुत जरूरी है। एंड नीतू जी, मुझे इस पे कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालना है। एक गुड न्यूज है सुनीत जी के लिए और हम सब के लिए कि पैडमैन पिक्चर बनने के बाद मेरे सर्कल में 3 ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिसने पैड्स को, यूज्ड सैनिटरी पैड्स को इंसिनरेट करने के छोटे छोटे लेटर बॉक्स साइज के मशीन बनाए हैं। और ये 3 यंग बॉयज हैं, 3 अलग अलग हैं, एक अहमदाबाद में है, एक बैंगलोर में है और एक गुवाहाटी में है।
दे आर यंग बॉयज, और वो अपना MNC में वेल एस्टेब्लिश्ड करियर छोड़ के, मैकेनिकल इंजीनियर है एक बंदा, तो वो अपना करियर छोड़ के इस मिशन में लग गया है। उसको भी सेंसिटिविटी थी जैसे सुनीत जी को है और मुझे है और नीतू जी और हम सबको व्यूअर्स को है कि भी पैड का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो पैड का वेस्टेज भी ज्यादा होगा, तो चलो अब एक इंसिनरेटर बना दें। दिस इंसिनरेटर रन्स लाइक जैसे मोबाइल का चार्जर जो पावर कंज्यूम करता है उतना ही पावर कंज्यूम करके यूज्ड सैनिटरी नैपकिन को एशेस बना देता है। तो कहने का मतलब ये है कि द सर्कल विल बिगिन। एक अच्छी चीज होगी, which will lead to another, which will lead to third, fourth, और जो राइट चीज है ग्रीन, हम सबको यहाँ हार्ट में टच करती है। हमारे में से 90% लोग ऐसे हैं जो इको फ्रेंडली चीजें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वो जो टच करने वाला एलिमेंट है, इट इज एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी, उसकी वजह से ये अभी चालू हो गया है। चेंज इज बिगन, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, तो जैसे आप कह रहे हो एक चेन लिंक उसमें आना चाहिए, फैसिलिटेटर्स आने चाहिए जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का इंजेक्शन सबको लगा सके। तो मेरे ख्याल से बहुत यू हैव आई सेकंड बोथ ऑफ यू। तो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, आप लोगों से बात करते करते मेरे को एकदम ख्याल आया है कि आई हैव अ GCGC फाउंडेशन, सुनीत जी को पता है उसके बारे में। तो उसमें हम लोगों का विजन ऐसा है कि हम कैसे मासेस तक लोगों के पास जाएं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को कैसे हम बूस्टअप दें और कैसे और ज्यादा डेवलपमेंट करें। तो प्रोबेबली हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। वी कैन मेक इट इन लाइक इंफॉर्मेशन सेंटर and we can exactly tie up with different associations jahan pe we can have our like some sort of enclosures and volunteers and jo jiski bhi kuch aisi requirement hai we can exactly probably cater that facility to them. For example जैसे अब आपका ये इंसेरिनेशन वाला है, इंकारनेशन वाला, तो अगेन लाइक इनके बारे में पता नहीं तो वी कैन प्रोवाइड देम द प्लेटफॉर्म कि कोई भी अगर आएगा तो उसको अगर इस चीज के बारे में जानना है तो हाँ GCGC फाउंडेशन है एंड दे कैन एक्चुअली रीच टू द राइट पीपल इन द राइट प्लेस। तो दैट प्रोबेबली वी कैन डू एंड वी विल टेक फॉरवर्ड। आप लोग हैं मेरे साथ? श्योर श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। तो श्रेया जी, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे बड़ौदा में अभी तक जैसे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं इसमें दो कैटेगरीज हो जाती है। एक होता है ग्रीन प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं और एक होता है रेटेड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन रेटेड प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको कितना मतलब आइडिया है व्हाट टाइप ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स वी आर हैविंग इन बड़ौदा एंड हाउ मेनी रेटेड प्रोजेक्ट्स आर देयर इन बड़ौदा? बड़ौदा में देयर आर मोर देन 35 green rated projects, already green rated, और उससे around 10 times more ऐसे projects को मैं जानती हूँ जो eco sensitive है but they may not have gone for green rating. तो ratio आप 1:10 का देख सकते हैं। इसको मैं एक बहुत पॉजिटिव चेंज की तरफ देख रही हूँ कि आज से 10 साल पहले 2004 में जब 2 या 5 थे इन द सिटी ऑफ बड़ौदा, तो इट हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली। दोनों का आप टोटल करो तो 5 से लेके 450 तक हम पहुंच गए। इको कॉन्शियसनेस की बात मैं कर रही हूँ। फॉर्मली रेटेड देयर आर मोर देन 35। और जैसे आप अगर डेवलपर्स से बात करते हैं, डेवलपर्स से मिलते हैं, तो मेजर चैलेंज आपको क्या आता है? किस तरह का चैलेंज आप फेस करते हैं ग्रीन एडॉप्शंस में, एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स? मेजर चैलेंज इज अ माइंड ब्लॉक। मेजर चैलेंज एक ही है, जो दिमाग के अंदर दीवारें हैं वो, और वो दीवार पे लिखा हुआ है कि ग्रीन इज नॉट नॉर्मल, ग्रीन इज फॉर द एलीट, जिसको हमें तोड़ना है। ग्रीन इज कॉस्टली, जिसको तोड़ना है। इनफैक्ट ग्रीन अप्रोच से आप अपने पैसे बचा सकते हो, वो हमें प्रोपोगेट करना है। तो ये जो है ग्रीन इज ओनली फॉर द एलीट, ग्रीन इज नॉट फॉर मी वाला, वो तोड़ना है।
तो श्रेया जी, जैसे अगर हम आज बड़ौदा सिटी की बात करते हैं कि हम कितना उसको आगे आने वाले टाइम में ग्रीन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम देखें तो अभी तक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत कम है मेरे ख्याल से ग्रीन, और उसको हमको कैसे बढ़ाना है, प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत सारे एसोसिएशंस है जिसके साथ हमें जुड़ना चाहिए और उनके साथ मिलके हमको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। तो उसमें आप स्पेशली कौन-कौन सी एसोसिएशंस को रिकमेंड करेंगे और हम किन लोगों के साथ एक बार अप्रोच करके और साथ में जुड़ के मतलब इसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ौदा में अगर ये प्रोजेक्ट्स इतने कम है तो वी नीड टू टेक दिस फॉरवर्ड। एंड जैसे अगर आप अभी देखेंगे कि जैसे अगर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर है, सोलर सोलर अकेला लगाने से ग्रीन नहीं हो जाएगा, मीन्स बिकॉज दैट इज द जनरेशन। तो सेविंग पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो सेविंग करके ही एग्जैक्टली वी कैन मेक इट ग्रीन। इसी तरह से वेस्ट देखें तो मतलब कम यूज, उसको रिसाइकिल करके ही नहीं होगा, उसको हमको सेव भी करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूज भी करना पड़ेगा जैसे आपने बोला। बट अब इसको कौन कौन सी एसोसिएशंस को हमको मतलब अप्रोच करना चाहिए एंड व्हाट एग्जैक्टली अदर स्टेप्स वी शुड टेक कि हम इसको एक अच्छे बोलने के तौर पे हम कर पाए, या म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे, कलेक्टर कमिश्नर के लेवल पे हम किस तरह से क्या स्टेप्स ऐसी ले सकते हैं कि हम इस मूवमेंट को आगे बड़ौदा पूरी उसमें लहर की तरह लेकर आ पाए। सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगी कि VMSS के साथ हाथ मिलाया जाए, वहां पे पहला अवेयरनेस सेशन किया जाए। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नंबर 1 है FGI, नंबर 2 है VCCI और नंबर 3 है FICCI। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिसमें सारे बिजनेस ओनर्स, इंडस्ट्री ओनर्स और जो लोग थोड़े से वेल एजुकेटेड हैं, जो इस चीज को समझकर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन प्राइवेट 3 इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना चाहिए और VMSS गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाना चाहिए। और आर्किटेक्ट्स में जैसे है, मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट्स का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल रहता है, बिकॉज दे आर द मेजर इन्फ्लुएंसर्स। तो उसमें ट्रिपल आईडी, जैसे लाइक वी आर इनटू IGBC, तो हम लोग ट्रिपल आईडी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। अभी हमने ग्रीन इंटीरियर्स का सेमिनार भी किया था एंड इसकी तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बट आर्किटेक्ट्स के दिमाग में क्या चैलेंज होता है? जैसे अगर आप आर्किटेक्ट्स, आप तो खुद इस ग्रीन के लिए मोटिवेटेड है, बट जैसे अगर आप दूसरे आर्किटेक्ट्स को देखते हैं तो उनके दिमाग में व्हाट ब्लॉकेज यू सी, व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट यू सी कि वो ग्रीन की तरफ उतना मूव नहीं हो रहे हैं? देखो, प्रोफेशन से बहुत लेना देना नहीं है। आप आर्किटेक्ट हो या डेवलपर हो, जो माइंड ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ वो दोनों में कॉमन है। आर्किटेक्ट्स, फॉर्चुनेटली आर्किटेक्ट्स थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, यानी बड़ौदा में मोर देन 600 आर्किटेक्ट्स हैं, तो उसमें से मोर देन 90% तो ऑलरेडी एनवायरमेंट सेंसिटिव हैं। इसीलिए ब्लॉकेज आर्किटेक्ट्स को है, ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। ब्लॉकेज आर्किटेक्ट्स समझा नहीं पा रहे हैं या सुनने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेम जो मैंने प्रीवियसली कहा, ग्रीन इज फॉर द एलिट, है ना, मुझे करके क्या फायदा, पैसों का फायदा। तो ये जो 2 चीजें हैं, अगर वो प्रोपोगेट हो जाएगी तो ये माइंडसेट क्लाइंट का भी चेंज होगा। और आर्किटेक्ट्स तो ऑलरेडी काफी सेंसिटिव है, क्योंकि आर्किटेक्चर की पढ़ाई में इस पे बहुत सारा जोर ऑलरेडी दिया जाता है। मेरे को इसमें एक कमेंट करना है। नीतू जी, बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि ये बहुत ये इशू जो आपने निकाला है बहुत ही मतलब सेंसिटिव है इन दैट सेंस। अब मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। मतलब आप कोई घर लेने जाओ, तो व्हेन यू गो एंड आस्क देम व्हाट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, very simple question, and the answer would be some thousand, yes, per square feet is the maintenance cost.
बट इट्स अ वेरी मतलब ये कैलकुलेशन भी आर्किटेक्ट्स ने करके दिया होगा, टू एज्यूम दैट डेवलपर को दिया होगा, बिकॉज आई डोंट नो हाउ आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर वर्क, बट ये पूरा कैलकुलेशन दिया होगा. बट द फ्रैंकली स्पीकिंग, हाउ मेनी आर गोइंग टू टेक द एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट अगर वेस्ट मैनेजमेंट की अगर अपने बात करो या इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप दोनों में आप इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिफाइंड इन टर्म्स दिस. बट देर इज नो प्रोविजन फॉर देम टू कैलकुलेट और गिव इट. उन्होंने जो भी गवर्नमेंट डेटा से लिया होगा, बट गवर्नमेंट डेटा ही अगर गलत हो तो आप क्या करोगे? सो द थिंग इज दैट द होल चेन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. वहां से जो रॉन्ग होते गया. सेकंड क्वेश्चन आता है, डेवलपर अगर अपने ब्रोशर में ये डालना चालू कर दे कि इंसेंटिव में दे आर गिविंग वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, दे आर गिविंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, they are giving some electricity reduction का कुछ instrument. So these are going to be very helpful, and these are very very big and practical ideas and which can really attract people. आज आपको चाहिए कि नहीं वेस्ट मैनेजमेंट, आप किसी भी बंदे को पूछो, अगर आपके आपको मैं फ्री वेस्ट मैनेजमेंट करके दूं, आपको अच्छा लगेगा? तो दे विल से यस. बिकॉज कोई भी घर लेने जाएगा ना, वो ये भी चाहता होगा कि उसके आजू बाजू की सुंदरता बनी रहे, उसके घर की तो है ही, और उसकी सोसाइटी की. सो दिस आर वेरी स्मॉल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच हैज टू बी फाइन ट्यून. ये फाइन ट्यूनिंग की बात है. बिल्कुल. हमारी जो संस्कार नगरी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी विश्वामित्री. ये सुनीत जी से है. जैसे फिजिकल वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, और पर जब अगर हम आज विश्वामित्री के मित्री जी को देखें, जैसे हम अपने आज गंगा के लिए कंसर्न है, बट अगर हम आज विश्वामित्री को देखें तो एग्जैक्टली आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम सब अपने अपने घरों में अगर एसटीपी लगा ले तो प्रोबेबली उसके अंदर जो पानी जाएगा वो क्लीन जाएगा, तो क्या वो एक मोड हो सकता है, या हम किस तरह से इस चीज को और क्लीन कर सकते हैं? बिकॉज जैसे अभी सूर सागर में काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो विश्वामित्री को और सुंदर बनाने के लिए क्या चीज की अड़चन है? और मेरे ख्याल से बड़ौदा को ग्रीन, क्लीन और सुंदर बनाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल और हाथ रहेगा. पहली बात यह है कि मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ. मतलब ऑलवेज गिविंग एग्जांपल इज ऑलवेज बेटर, सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगा. विश्वामित्री एक तो दो तरीके से खराब ज्यादा है. वन इज दैट वन इज ड्यू टू द अनट्रीटेड वेस्ट वाटर व्हिच इज गोइंग इनसाइड, and which is normally coming from those societies or which are not having such treatment plant, और कुछ जगह अपने सीवेज पंपिंग का भी कुछ फैसिलिटी नहीं है, वो उसमें जा रहा है. और दूसरा आता है डंपिंग ऑफ योर सॉलिड वेस्ट इनटू दैट आल्सो. दैट इज आल्सो वन मोर रीजन. तो अभी हमने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट चालू किया है ऑन अलॉन्ग विद साइंस फाउंडेशन एंड कम्युनिटी साइंस सेंटर, एंड पद्मश्री श्री एम.एच. मेहता जी इसमें बहुत अच्छी तरह उन्होंने ये इनिशिएट किया, यू कैन से दैट. And what we have taken is that we have taken Parshuram Bhatta. Parshuram Bhatta is on the bank of the river Vishwamitri, and that is the community which doesn't have any legal way of dumping the waste or utilizing the waste. तो वहाँ पे हमने एक waste management plan डाला है. You will not believe that in 2.5 months they were so happy, and they converted around waste of around 80 houses, and they sold the compost to us. So it's a positive sign is that if we start implementing such projects in which there is a benefit to the society, so वो सब अपने नदी में नहीं जाएगा, and it would try to improve the situation. The same thing applies to sewage also, or any untreated water. So either we put up some filtration plant, or decentralized, जैसे मैंने आपको अपने मेरे introduction में बताया कि we have made Vadmi filters. So Vadmi filters are one thing would not allow, which will treat the water before it goes into the river. So these are very very basic and small what you call costing projects. सो वेरी गुड. प्रोबेबली ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा, और ये टॉपिक तो ऐसे हैं, एंड व्हेन वी आर वेरी मच कंसर्न एंड लविंग आवर सिटी, तो शायद ये सब खत्म ही ना हो, बट टाइम कंस्ट्रेंट है. एंड मैं आप दोनों को इतना थैंक यू देना चाहूंगी कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मेरा ये इनवाइट एक्सेप्ट किया, बिकॉज मैं इस बार बेरी साहब को बुलाना चाह रही थी. समहाउ ही वाज नॉट फीलिंग गुड,
तो हमें उनका ड्रॉप करना पड़ा एंड आप लोगों ने बहुत साथ दिया तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। बट इसका मुझे ऐसा लगता है कि एक कभी हमारा इसके अंदर से पॉजिटिव ये निकलता है कि जो एक इंफॉर्मेशन सेंटर है वो हमें एक अच्छा सा सॉलिड बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग वॉलंटियरली अपनी उसमें फैसिलिटीज दे। And this I actually devote that GCGC Foundation for this, so that it can be data bank and a helping center to all of the people who exactly want to give something green or want to develop something green and want to know something green about that. So ये एक अच्छा हमारा हुआ है। लास्ट में मैं सिर्फ एक रेपिड फायर का क्वेश्चन, श्रेया जी मुझे पता है आपको जल्दी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका एक शब्द में या एक वर्ड में आपको आंसर देना है। तो बेस्ट ग्रीन फैक्ट्री। रेपिड है, रेपिड। हीरो। बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ योर्स। Dev's Camp, Okay. Jambugoda. Okay, and making it just a lighter note, best hobby for lockdown to be adopted? अपना घर साफ करना। So, what is the best thing that you did in your lockdown period? मेरे पास वेस्ट मैनेजमेंट के जितने टम्बलर्स थे सब फुल हो गए, तो उसको मैंने घर में जितने तगारे थे, गुजराती घर में one word. I have started making gas, cooking gas from waste. Good. So what is love for you? Trees. Wow. And what is the tragedy? Garbage. Good. So lastly, which green practice you would like to implement in Baroda as a mandatory? One word. Waste. Good. So आपका last message green and beautiful संस्कार नगरी के लिए क्या रहेगा for the audience? Go green before green goes. Good. सुनीत जी, अब आपके लिए, which state in India you think is practicing best waste management? Gujarat. A factory that has implemented this practice at its best? Banswara Syntex Limited. What would be best hobby according to you for this lockdown one should adopt? Photography. What did you miss the most in this lockdown? Cannot go for my waste management projects. Is it? मेरे को लगा आप बार-बार बोलोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। No. I look handsome. See, अभी भी आप देख सकते हो। So, what's your major message for the followers? Major message again. Please segregate plastics. That is the only thing. So, thanks both of you. बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये मेरा एक नया एक्सपीरियंस है जो मैं कर रही हूँ आजकल, and I'm enjoying a lot. And actually मुझे ऐसा information और feedback मिला है कि people are also enjoying a lot. And I had few people जिन लोगों ने actually जानना चाहते हैं कि ग्रीन क्या है, तो शायद थोड़ा बहुत हम लोग इसके अंदर ना उनको लाइट दे पाए हैं। एंड प्रोबेबली कुछ टाइम में जो GCGC फाउंडेशन वाला है, वो जो हमारा वर्टिकल आप लोग की सहायता से होगा, उसको हम अच्छा कर पाएंगे, सो दैट और ज्यादा लोग बात समझ पाए कि ग्रीन क्या है। एंड सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि GCGC फाउंडेशन में वी आर डूइंग अ कैंपेन ऑफ हेल्दीफाई स्लम्स, जिसके अंदर बिकॉज अभी गर्मी के अंदर स्लम में मेटल की शीट में रहते हैं लोग, तो बहुत परेशान हो जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाता है। तो पनाश इसको सपोर्ट कर रही है और उसको हम कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद उसमें और ज्यादा हम लोग ग्रीन प्रैक्टिसेस उसके अंदर लगाएंगे और उसको और हेल्दीफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो। लोग अभी अपने मतलब मैं अपने घर से अभी सोच में ज्यादा बढ़ी नहीं हूँ, पर आप पूरी सिटी के लिए काम कर रहे हो, सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा है एंड आई थिंक यू विल गो अहेड, बहुत अच्छा काम करोगे। और एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड यू कैन श्योरली लेट मी नो।
Thank you. Thank you. Okay, bye. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Bye.